Okay, so we are going to begin with coordinate geometry, third chapter in this section. हम लोग पहले दो चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं. The first two chapters are about number one, the behavior of coordinate points when put under reflection, and number two, it is about the measurement between two different points when a third point comes in between. Okay. Now we are going to understand about equations of a straight line. So जब हम लोग straight line का बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, प्लीज ध्यान दीजिएगा. अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2 y2. जब ये दोनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. डू यू एग्री विद मी? डू यू एग्री विद द फैक्ट दैट व्हेन वी ज्वाइन दीस टू लाइंस वी गेट अ स्ट्रेट लाइन? सो इस स्ट्रेट लाइन में इन्फिनिट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, करेक्ट? Can be infinite amount of coordinate points. Do you agree with this? So we need to find an equation जिसमें अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को वैल्यू देंगे तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि इस लाइन को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना है. इस लाइन को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना है. नाउ द जनरल फॉर्मेट ऑफ दिस इज ax plus by plus c is equal to 0. There is another format, y is equal to mx plus c. ये दोनों फॉर्मेट tells you an equation of a line. So the question then becomes कि equation of a line क्या है? So let's say हम बोलते हैं कि we have an equation of a line. Let's say y is equal to x plus 3. y is equal to x plus 3. क्लास 9 में ये आप लोग किए नहीं है because it was not part of your syllabus. But let's say x का वैल्यू 1 होगा. So अगर x equal to 1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू हो जाएगा 5. x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू हो जाएगा 3. So if we use the coordinate geometry plotting system and we try to plot the points that we just saw, देखिए अगर x 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा. तो x 1 है तो y का वैल्यू होगा 4. अगर x 2 है तो y का वैल्यू होगा 5. Just let me use another color. x1 है तो y 4 है, x2 है तो y है 5. x अगर 0 है तो y का वैल्यू है 3. Now if you look at this, these three are lying on the same point. मतलब we tried to solve this equation, we gave it a value of x, we got a value of y, and when we are trying to plot it, we are also getting a straight line. मतलब ये equation represents a straight line. Now try to imagine this is an algebraic expression. Do you agree with that statement? This line is an algebraic expression. Yes or no? That statement is nothing but algebra. Yes? And this is nothing but a drawing. So हम picture को algebra से represent कर रहे हैं. If I may put it that way. Picture को algebra से put कर रहे हैं. And this forms the very basis of a lot of things that you see on your phones as well. It's all about plotting. हमारा फोन में एक पूरा ग्रिड बना हुआ है. If you know what I mean. So if you have a screen, this is what you will understand better. If you look very closely at your screen, you will find that they are made up of something like this. It's called a pixel. So every pixel is mapped. So कौन से पिक्सल में क्या कलर डालना है ये आपका प्रोसेसर डिजाइन करता बताता है. So basically the processor also know how to plot. So जो पिक्चर देखते हैं, when you look at a picture on your phone, it is completely plotted on your phone. एक एक पिक्सल में बताया जाता है कि क्या आना है, what color you want to show.
In fact, if you look here also, you'll find pixels on the screen because the pixels are created by that projector. And every pixel is being told by the processor of the projector कि आपको यहाँ येलो देना है, यहाँ आपको कोई कलर नहीं देना है, यहाँ आपको ग्रीन देना है अगर हम ग्रीन बना रहे हैं. So this tells you how to represent a line using algebra and vice versa. तो अगर आपको algebraic expression देंगे तो आप लाइन से बना सकते हैं, आप लाइन देंगे तो आप लाइन से algebra निकाल सकते हैं. Do you understand my point? Do you understand? This is a very very important point. ठीक है. So let us say we have a little more complicated 2x minus 3 लिखता है. Little more complicated. 1 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 2 minus 3 minus 1. अगर ये 2 देंगे तो y हो जाएगा 4 minus 3 plus 1. अगर हम 0 देंगे तो y हो जाएगा minus 3. Do you agree with me? Do you agree with me? तो अगर x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू है -1, ये वाला पॉइंट हुआ. अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 1 है, ये वाला पॉइंट हुआ. x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू -3 है, ये वाला पॉइंट हुआ. यस और नो? सो इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, sorry for that bad line, but that line is lying on a straight, those 3 points are lying on a straight line. Do you agree with me? Yes. मतलब हम लोग algebraic expression यूज करके हम लोग उसको प्लॉट कर पा रहे हैं. So then the question becomes, what about x and y? Why do we have x and y? Equation में x and y क्यों होता है? X and y represents, x and y in the equation represents all the coordinates that lie on that line. जरूरी नहीं है सिर्फ 1 minus 1, 2,1, 0,3 -3, ये 3 ही हो. जरूरी नहीं है ये 3 ही हो, बात समझिएगा. जरूरी नहीं है सिर्फ ये 3 लाइन हो सकता है और भी लाइन हो सकता है. यस. सो लेट अस से वी हैव x half and y -2. Will this point lie on the line? एक तरीका है by actually plotting it and checking it. x half है, ये half point हुआ, and it is meeting the line somewhere here which is -2. तो ये तो पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि दिस लाइज ऑन द लाइन. लाइक हम लोग पिक्चर देख के देख सकते हैं, पिक्टोरिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट चेकिंग इट? सो अगर ये हाफ है, ये -2 है, और अगर आपको पता करना है कि क्या ये इक्वेशन में लाई करता है या नहीं, आप बार बार जाके ग्राफ में तो चेक नहीं करोगे. So what we do, we put the value of y and x in this equation. -2 is equal to 2 into half -3. -2 is equal to 1 -3. -2 is equal to -2. LHS and RHS same है, मतलब ये equation satisfy हो रहा है. If the equation is satisfied, इसका मतलब है कि ये point इस line में रहता है. It is on that line. मतलब उस line के ऊपर है, उस लाइन के नीचे नहीं है, दूर नहीं है, ऊपर नहीं है. It is lying on the line. So if a line lies on the line, sorry, if the point lies on the line, then it will satisfy the equation of that line. If a point lies on the line, then it will satisfy the equation of that line. Do you understand? So the big important factor here is when a point lies on a line,
it will satisfy the equation of the line. Clear? Please start copy. So this equation, this is a general form of the equation. M और C जो है वो M और C नहीं रहेगा, obviously इसमें कुछ values रहेगा. As you can see यहाँ M के जगह में 2 है and C के जगह में -3 है. Apart from that y and x हमेशा y and x रहता है. Now this is kept in such a way to emphasize कि पहला चीज x and y कुछ भी हो सकता है as long as those points are lying on the line. And secondly ये इसलिए भी है so that we can check if LHS and RHS are coming on the same. Because अगर एक point इक्वेशन के ऊपर नहीं है, if it is not lying on the line, let's say ये वाला, ये 1,1 है, correct? And this is the line that we had just plotted. So is 1 equal to 2 into 1 minus 3? 1 equal to 2 minus 3? क्या 1 equal to -1 है? Obviously नहीं. So when the equation is not getting satisfied, आप बोलो सर लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए तो शायद सेटिस्फाई हो जाए. 2 equal to 0 आ रहा है, ऑब्वियसली ये भी तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना. LHS and RHS satisfy नहीं हो रहा है. So if LHS and RHS are not satisfying, if they are not equal, इसका मतलब है that the point does not lie on the line. That the point is not that lies on the line. It is not a point that is on the line. Either it is above the line or it is below the line. Is either it is on the left or on the right, but not on the line. So when we see the general form of the equation y equal to mx plus c, so m क्या है and c क्या है? m को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन. m को बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन. m को बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन. c को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट. c को क्या बोलते हैं हम लोग? y इंटरसेप्ट. प्लीज याद रखिएगा फिर से, c को क्या बोलते हैं हम लोग? y इंटरसेप्ट. दोनों क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब होता है द tan ऑफ द एंगल that the line makes with the positive direction of the x-axis. ठीक है. And y-intercept क्या हो जाएगा? Y-intercept is the point on the y-axis that the line cuts the y-axis. So if you look here, this is the point where the y-axis is cutting, where the line is cutting the y-axis. Then मेरा intercept क्या हो जाएगा? -3. Y-intercept क्या है यहाँ? -3 है. This is the point where this line is cutting the y-axis. Then this point becomes 3. This point becomes 3. अगर ये line को अगर हम लोग आगे ले जाएंगे तो यहाँ वो कट रहा है. It may be 6 or something. तो हम लोग बोलेंगे y-intercept क्या है? +6 है. ठीक है. एंड ये किस फॉर्म में आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे? इसी फॉर्म में चाहिए हमको. y पॉजिटिव चाहिए, y अकेला चाहिए, y के साथ कुछ नहीं रहेगा. You cannot say 2y is equal to 4x minus 7. This is not the correct form. तो correct form क्या हो जाएगा? y is equal to 4x by 2 minus 7 by 2. ये हो जाएगा 2x minus 7 by 2. This is the correct form of the equation. y is equal to 2x minus 7 by 2. तो यहां से आपको आइडेंटिफाई क्या कर सकते हैं कि मेरा स्लोप क्या है? 2 है एंड मेरा y इंटरसेप्ट क्या है? -7 by 2. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ये अभी नहीं लिखेंगे, विल सी दिस. सो हम लोग स्लोप के ऊपर ध्यान देते हैं. सो लेट अस टेक अ कोऑर्डिनेट एक्सिस. लेट अस टेक अनदर कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये मेरा लाइन है ऐसा, ये हो जाएगा थीटा. पॉजिटिव डायरेक्शन क्या हुआ? इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, यस और नो?
If we move towards the right, the value of the coordinate axis increases. Correct है ना? राइट की तरफ मूव करेंगे तो इंक्रीज करेगा. तो हम लोग हमेशा इस डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन से हमेशा राइट की तरफ से लेंगे. ठीक है, दिस इज थीटा. तो स्लोप क्या हो जाएगा? m विल बी इक्वल टू tan थीटा. स्लोप क्या होगा? ये जो एंगल है उसका tan थीटा. डिग्री तो नहीं लिख सकते इक्वेशन में, कोई वैल्यू लिखना है तो हम लोग क्या वैल्यू लिखते हैं? tan थीटा का वैल्यू लिखते हैं. और जनरली वही आता है. इफ यू डू इट, tan थीटा ही का वैल्यू आता है. क्वेश्चन विल बी वाई tan थीटा. लेट्स नॉट गेट दैट, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो हम लोग उसको ध्यान नहीं देंगे. tan थीटा क्यों आता है ये भी आपका सिलेबस में है, सिलेबस में नहीं है, बट देयर इज अ रीजन क्यों tan थीटा लेते हैं, व्हाई इज इट सो. बट स्लोप हम लोग कैसे लेते हैं? tan थीटा लेते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन, x एक्सिस एंड द लाइन. इनफैक्ट ये 0 से 180 के अलावा और कोई एंगल नहीं हो सकता इसमें. आप लोग सोचो कि अरे उल्टा भी तो ले सकते हैं, सो ये एंगल भी तो हो सकता है. आप लोग सोचोगे तो लाइन तो ऐसा बनेगा. अगर लाइन ऐसा बन रहा तो हम लोग यहां से लेंगे. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? You will never take the angle apart from, so if I have a coordinate axis like this and आप लोग बोलोगे let's say मेरा एंगल ऐसा आ रहा है, but if I cut the line you'll get something like this. तो ये जरूरत तो है नहीं. Do you understand the point? So the angle is always 0 to 180, 0 से 180 के बीच में होगा. Do you understand the point? So let us see a few questions. A slope whose inclination is 45 degree. ठीक है, m क्या होता है? tan थीटा होता है, यानी ये tan 45 डिग्री हो जाएगा. 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2. 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2. यानी स्लोप मेरा क्या है? 1/√2 है. दूसरा वाला हमको बताइए प्लीज, दूसरा वाला आंसर बताइए कितना आना चाहिए. दूसरा वाला आएगा सो m हो जाएगा tan थीटा, यानी tan 30. tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3. ठीक है, ये उल्टा करना है. देखिए m इक्वल टू tan थीटा होता है, यहाँ m का वैल्यू 1 दे दिया है. 1 इज इक्वल टू tan थीटा. tan का कौन सा एंगल पे रेशियो 1 आता है? 45 पे. हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 30, सॉरी tan थीटा. थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा. दैट इज योर एंगल. कैन आई फाइंड दीज टू आंसर्स? वेरी इजी. ये 60 डिग्री होता है, ये थीटा कितना होगा? 60 डिग्री. ये हम बताएंगे नहीं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट. इसको उल्टा करना है सर. Find the equation of a straight line parallel to x-axis which is at a distance of 2 units above it. Now this is what we have already done in section formula. Section formula में आपको explain किया था. When a line is parallel to any of the axis, when a line is parallel to any of the axis, उस axis का coordinate हो ही नहीं सकता है उसका equation में नहीं हो सकता है. यानी इसका मतलब ये है कि उसमें हर एक point हो सकता है उस axis का. So let's say x axis से कोई अगर parallel है, ठीक है, सो पैरेलल का मतलब ये नहीं कि यहाँ x एज अ कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं हो सकता. सो अगर हम ये कोऑर्डिनेट पॉइंट को लेंगे तो ऑब्वियसली ये x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों को लेके रहेगा. बट इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ पर्टिकुलर एक्सिस, तो अगला एक्सिस का जो पॉइंट है वो फिक्स हो जाता है. सो अगर x एक्सिस से पैरेलल है एंड उससे 2 यूनिट अबव है, यानी इसमें y का वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता. x का सब वैल्यूज पॉसिबल है. कोऑर्डिनेट पॉइंट जब आप लेंगे तो x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट y का सिर्फ और सिर्फ 2 होगा. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? y का सिर्फ और सिर्फ 2 होगा. सो अगर यहां हम लोग बोलते हैं इफ वी आर सेइंग
that we now have another line parallel to the x-axis but below the x-axis by 3 units. So we'll have a parallel line, but इस लाइन में y का वैल्यू हमेशा -3 होगा, चेंज ही नहीं हो सकता है. तो यहां कुछ होगा x समथिंग -3, यहां भी x समथिंग -3, ये लेट लिए ये 2 -3 है, ये 1 -3 है, ये 0 -3 है, ये -1 -3 है, बट y का वैल्यू हमेशा -3 रहेगा. x का कुछ भी हो जाएगा, x का इन्फिनिट वैल्यूज हो सकता है, y का सिर्फ एक 1 होगा. ठीक है. सो इफ आई हैव द सेम थिंग बट अब y एक्सिस से पैरेलल है, we have the same thing but now the lines are parallel to the y axis, मतलब x का वैल्यू फिक्स हो जाता है. इसका मतलब यहां यह है कि x का वैल्यू यहां फिक्स्ड है. सो 3 यूनिट्स टू द राइट, 3 यूनिट्स टू द राइट, मतलब यहां x का वैल्यू +3 होगा. 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, यानी यहां x का वैल्यू -2 फिक्स्ड रहेगा. फिक्स्ड, उस पूरे लाइन में x का वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकता है. इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. दैट इज वाई व्हेन वी हैव पैरेलल लाइंस, जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है वही वैल्यू आपका हम लोग दिखाते हैं, बाकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है. y का ना होने का मतलब है कि आप कुछ भी पुट कर दो चलेगा. इट डजंट नीड एन इक्वेशन टू सैटिस्फाई. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इट डजंट नीड एन इक्वेशन टू सैटिस्फाई. एंड द अदर पॉइंट इज y इक्वल टू, अगर -3 लिखते तो हमको आपको ये y इंटरसेप्ट भी दे देता है, but it doesn't need a y and x value to satisfy the equation. तो इस कुछ भी डालो, इक्वेशन satisfied है. इन्फिनिटली लंबा रखोगे तब भी तो x कुछ भी डालोगे फर्क नहीं पड़ता है. x का वैल्यू 1 मिलियन डालो तब भी यहाँ y का वैल्यू 2 होगा. x का वैल्यू अगर तुम 1 लाख करोड़ों 1000 कर दोगे, बिलियन कर दोगे, डजंट मैटर, y का वैल्यू 2 ही रहेगा. इट विल रिमेन फिक्स्ड. डू यू अंडरस्टैंड? प्लीज कॉपी. Next, find the equation of a straight line parallel to the y-axis passing through the point -3, 5. y-axis से parallel है, मतलब उसमें fixed क्या है? x. y-axis से parallel है, उसमें fixed क्या होगा? x fixed होगा, यानी x equal to -3 आपका आंसर है. When a line is parallel to y-axis, the value of x is fixed. And that becomes the equation. And that becomes the equation. Do you understand? Do you understand? Next question. Find the equation of the line whose slope is this, y-intercept is that. So general equation क्या है मेरा? y equal to mx plus c. m आपको दे दिया है 3, y आपको दे दिया है 5 -5. हम लोग क्या करेंगे? y is equal to 3x minus 5. नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? y is equal to -2 by 7x plus 3. स्लोप हमको y इंटरसेप्ट क्या दिया है? +3 दिया है. So if you want, you can take the LCM. -2x plus 21 by 7. 7y is equal to -2x plus 21. हम लोग लिख सकते हैं 2x plus 7y is equal to 21. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बेटर है ये फाइनल आंसर आपको देना, तो ऐसे लिखना ज्यादा बेटर लगता है नहीं, जरूरी नहीं है. नंबर 3, y is equal to √3. स्लोप मेरा क्या है? √3x -4/3. यू कैन लीव इट एट दैट, छोड़ दीजिए ऐसे. बट अगर आप इसके एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, आपका एलसीएम होगा 3√3x -4 होगा. 3y is equal to 3√3x -4. दैट कैन बी योर आंसर एज वेल. यहाँ आपको इंक्लिनेशन दे दिया है, आपको स्लोप नहीं दिया है, एंगल दे दिया है. सो हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर 4, m is equal to tan थीटा, यानी सॉरी y नहीं, m equal to tan थीटा. m हो जाएगा tan 30 डिग्री विच इज 1/√3. tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है. तो आपको स्लोप मिल गया, y इंटरसेप्ट मिल गया, y is equal to 1/√3 x plus 2. ठीक है, y is equal to हो जाएगा √3, आपका एलसीएम है, x plus 2√3
root over 3y is equal to x plus 2 root 3. That is our answer. As simple as it can get.